Recording in progress. Okay, this homework we'll discuss. Vector A has the magnitude 2 and it is parallel to B. So any vector is given by its magnitude and its unit vector multiplied both. So unit vector of A will be same as that of unit vector of B because both are parallel. So B का unit vector निकाल लिया, it is coming this. Now we can write the vector A, which is vector A is equal to its magnitude 2 given here. You can see this we have brought it here. And unit vector we have found, we will multiply with the unit vector. So what we get is 6i cap by 5 plus 8j cap by 5. This is the required vector A. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anybody can do similar questions? चलो आगे देखेंगे फिर देख लो इसको अगर कोई if you are finding any problem तो just you can ask. We are on to unit vectors. Unit vector निकालने के लिए क्या पॉइंट सीखे थे हमने? Unit vector का magnitude should be 1 है ना? Magnitude of unit vector should be 1 and all parallel vectors have the same unit vector. ये पॉइंट सीखा था. Parallel vector का unit vector same होगा. और क्या सीखा था बोलिए? Unit vector का unit होता है कि नहीं होता है? No unit. Yes. What else? Unit vectors Only will give have direction. only it will give the direction of particular vector. These are the points. And how to find out unit vector? Vector divided by its magnitude. So that's what we are doing in this. Still some questions are pending now. This is done. इसका क्या आंसर आया? Plus minus, plus minus the root point. similar to the previous one. जैसा पहले किया था ये मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो रूट वाले फार्मूले से 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा बीच में आ जाएगा, मैंने बाद में लिखा, कोई बात नहीं. 1 स्क्वायर कर लो दोनों तरफ और सॉल्व कर लो. लैम्डा विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 0.75. Got it? Solve this equation, you will get this. No problem? बोलिए. This was the second homework. Now next one was this. ये इसको कैसे करेंगे? What vector should be added in this vector? Let x is added in this vector. What should we get? Unit vector along the negative z axis. तो क्या मिलना चाहिए? Unit vector of negative z axis क्या होता है? माइनस k cap. सपोज हमने इसमें x वेक्टर ऐड कर दिया तो बोथ एडेड शुड गिव s माइनस k cap. बस ये इसको इधर भेज के सिंप्लीफाई कर लो. सिंपल था ये, बट सम ऑफ यू डन मिस्टेक इन दिस. What we should add in A so that total should become minus k cap. So let x is added. देखो इसको ऐसे करेंगे, इसमें x ऐड करके माइनस k cap हो गया. a cap a वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया, a की वैल्यू भी पुट कर दी. So after simplifying we get this. So you can check also. ये वेक्टर को अगर तुम इसमें ऐड कर दो तो end result will be minus k cap. You can check it when you get the final vector. You can always check your answer. बोलिए, ठीक है? So these are the just simple points you have to understand and apply it. बोलिए, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सिंपल? Everybody is comfortable or not? बोलिए, इसको कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो we can revise the things. वेक्टर्स में
वी आर ऑन टू यूनिट वेक्टर्स एंड उसको फिर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन भी यूज डायरेक्ट हो जाएगा उनका इफ वेक्टर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर हमें आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में दिया है टू वेक्टर, तो एडिशन इज वेरी सिंपल। यू कैन जस्ट सिंपली ऐड देयर आई कोफिशिएंट्स एंड जे कोफिशिएंट एंड के कोफिशिएंट। सब्ट्रैक्शन में माइनस करना है, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। जैसे ये दो वेक्टर लिए थे हम लोगों ने, एडिशन में ऐड कर दिए दोनों, ये सब्ट्रैक्शन में माइनस होके ये आ गए। मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। उनके कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दैट्स व्हाट विल गिव यू व्हाट मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, ये भी हो गया था। एंड पोजीशन वेक्टर्स हमने डिफाइन किया था, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी में आई कैप जे कैप लगा देंगे, तो दैट विल इंडिकेट द पोजीशन वेक्टर which will be nothing but a arrow drawn from origin to the point whose position vector is required, whose coordinates are given. Displacement vector में final position vector minus initial position vector of the particle who has been displaced from one point to a other point. Particle was here, A, whose position vector was R1, then gone to B, position vector is R2, displacement vector is D. Using the triangle law of vector addition, this plus this should be R2. ये यूज किया तो R1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D, R2 minus R1, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ओके, इसके क्वेश्चंस भी थे, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ ऑब्जेक्ट इज एट कोऑर्डिनेट सो एंड सो, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा R1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर। दिस इज R1, जो कोऑर्डिनेट्स है उसी में आई जे के लग गया। शिफ्टेड टू ओरिजिन, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर बताइए। 0, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 0 वेक्टर माइनस I cap minus 2j cap minus 3k cap. So what we get is displacement vector is minus I cap minus 2j cap minus 3k cap. That's what is the answer. Magnitude निकालना है, magnitude कितना होगा बोलो? How much is the magnitude coming? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. It will be root 14. Okay. Meter, because unit is given meter here. We can write the unit. Generally units are not given, we just don't write, but if it is given, we have to write. It is the displacement vector, so its unit is in meter given. Coordinates are given in meter. बोलिए, ठीक है? So these are the points you have to always remember. Displacement vector will be required in the chapter called work, power and energy. Force multiplied by displacement vector will give you the work done. All right, बोलिए। This was there in homework. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर है इसका बोलिए? Root 2. Root 2. रूट 2। भाई यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप भी आएंगे ना। आई एम नॉट आस्किंग द मैग्नीट्यूड। I cap minus J cap upon root 2. आई कैप जे कैप शुड बी देयर बिकॉज वी आर डीलिंग विद द यूनिट वेक्टर। पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। पहले सब्ट्रैक्ट करके जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा सब्ट्रैक्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग a minus b,
A minus B. What we get is I cap plus J cap. प्लस है बीच में ना, इज इट प्लस है? यस प्लस है बीच में. इसका मॉड निकालेंगे. Mod will be √2. Now its unit vector will be vector divided by its magnitude. अभी ये vector है, whole minus has been done. Whatever we get is the particular vector और उसका magnitude √2 है. So it is I cap plus J cap divided by √2, or you can write it like this also. So you can check also. If you find the magnitude of this will be 1. If you want to check your answer, whether you have done it correctly, so whatever end result comes, if it is unit vector, its magnitude will be 1. So we can check it. Magnitude कितना आ रहा है? 1 by √2 square will be 1 by 2. Again 1 by 2. That is 1. Yes. So it is unit vector. All right. तो ये थोड़ा सा different way से given, it was given in different way. अगर बोला जाता है find out the unit vector of A minus B, A minus 2B, A minus 2B. So first you have to multiply B with the 2, further 2, then you have to subtract, then you have to find out its magnitude and divide. So whatever the instructions are given here, you follow and get that particular vector and find out its magnitude also and divide, then divide. And इसको मैं ऐसे भी दे सकता था, find out the unit vector of 2A plus B. What you have to do? A को 2 से मल्टीप्लाई करना है फुल. इसको 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, प्लस 8J आ जाएगा, 6I का. फिर इसमें से माइनस करना है B को या प्लस करना है, जो भी दिया है. तो whatever the instructions are given, you follow that and get the particular vector and then find magnitude and divide. Getting or not? So yes, simple है, but you have to be careful. You are likely to do the mistake in these questions. Clear to everyone, or you want somebody want me to explain again? Yeah, things are under control. ठीक है? All right. Tell me, Yes, am sir. I audible or not? Okay. Yes, sir. So what we are going to do further? Let's see what is next. This was the question. क्या था ये? Okay, ये question थोड़ा सा. चलो, let me see. Can you understand this question? Let me see. Don't write. Just understand. Let us see what is this question. If magnitude of vector sum of two unit vectors is also a unit vector, then find the magnitude of their vector difference. Could you get the question? क्या बोल रहा है ये? थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, है ना? What is want to say कि दो vector sum of magnitude of vector sum of two unit vectors. There are two unit vectors whose length is 1. दोनों की length 1 है ना? Magnitude 1 है, in fact, not length, magnitude 1. उनका vector sum का magnitude भी 1 है. Then find the magnitude of their vector difference. है कुछ समझ में इसमें? Do you want to try this question? बोले, particularly those who are going for competitive examination can try. चलो इसको मैं JEE NEET लिख देता हूँ. JEE and NEET students are supposed to do this question. Others can skip. For others it is optional question. ठीक है, तो solve and send. क्या आंसर आ रहा है इसका? Understand first, then you solve and send.
Okay, moving on to the next one. Let's see what is next. Done it? Noted? Just a second, sir. Yeah. Just a second, sir. All right. Done, sir. Okay, देखते हैं what is Done, next. sir. ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, और दिया था क्या मैंने? हाँ. Okay, this question is, what is this question? Car is moving in XY plane in anti-clockwise direction with center at origin. In which quadrant it will be when its velocity is 2i cap plus 2j cap meter per second? Can somebody tell me the answer of this question? I'm giving you 1 minute to think about this question. First quadrant. First Okay, first quadrant. answer coming is first quadrant. Any other answer? Whose answer is first quadrant? चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एक्सप्लेन करेंगे. बाय द टाइम अदर आंसर इट कम्स आई विल आस्क. कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट? अरे देयर कौन था? 2i cap, 2j क्षितिज. cap plus 2i cap, 2j Hmm. cap plus But this is not the position vector. This is the velocity vector. Position vectors and velocity vectors, they are two different physical quantities, and they will have their own. position upon time. Hmm. Position upon time. No. Velocity depends upon. देखो एक पॉइंट ध्यान से सुनो everybody. Already we have done the one dimension motion. देखो suppose ये coordinate system है and this is origin. The particle is here, ठीक है? So its displacement will be positive. X will be positive. But if it is going up, so velocity will be positive. If it is going down, its velocity will be negative. Being in the first quadrant, displacement is positive if we take the origin here and upward direction plus or downward direction. Origin के respect में upward direction plus है. Being in the first quadrant, displacement will always be positive. Its position will always be positive, but velocity can be, upward velocity will be positive, downward velocity will be negative at same point. जहाँ पे उसका position vector positive है, इसका position vector क्या है? Positive है. Coordinates होंगे कुछ, but velocity at same point is positive in one case, negative in one case. So both are different physical quantities and both are measured different, both have their own what is called positive and negative. So be careful. I don't know, first coordinates, first quadrant is right answer or wrong answer, but you have to be careful. You have to check thoroughly. It is not the position vector. ठीक है? So shall we keep it in the homework? You need some time to think about this question. Huh? इसका डायग्राम बना के करना. Make the circle, show the arrow of rotation, then you will get the clue. What is the right answer? All right. इसका second part भी रहेगा. Again, I'm not getting it. Again, I'm not getting it. इसके लिए गैप छोड़ देना एक और, इसके बाद क्लॉकवाइज भी चेक करेंगे. इसका पहले एंटी क्लॉकवाइज के करेंगे. आर यू टेलिंग मी सम आंसर? कुछ आंसर बोल रहे हैं आप? सर वापस एक्सप्लेन करेंगे. सर वापस एक्सप्लेन में ये कर रहा था. I didn't give any hint for this question, but I told you कि position vectors will have their different sign. First quadrant मैंने क्या बोला? कोई ऑब्जेक्ट है,
first quadrant में if it is going up, its velocity will be positive, v will be positive. देखो first quadrant में position vector तो always x is always positive, but if it is going up, so velocity v will be positive. If it is going down, v is negative. In first quadrant itself, position vector is positive, velocity is negative, positive both. So on these lines you have to think. On these, from this hint you can take the clue. Got it? Yes, sir. अच्छा चलो देखो ऐसे समझो. Yes, sir. सपोज ये सर्कल है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसा, और उसका यहाँ कहीं पर है, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे आएगा, उसका ये कंपोनेंट तो नेगेटिव आएगा, ये भी कंपोनेंट नेगेटिव आएगा. कंपोनेंट सीखा था हमने कल, वो d1 d2 वाला जो था. अभी वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, और वहीं पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे, एंड डाउनवर्ड दिस कंपोनेंट विल बी नेगेटिव, y कंपोनेंट विल बी नेगेटिव, और x कंपोनेंट विल आल्सो बी नेगेटिव. लाइक दिस वी हैव टू थिंक वेलोसिटी के केस में. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आई एम गिविंग यू प्रैक्टिस फॉर जस्ट थिंकिंग. दीस क्वेश्चंस आर नॉट इन बुक. बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ये इस टाइप के क्वेश्चन, बट यू हैव टू नो ऑल दीज पॉइंट्स because they will help you in different chapters, particularly those who are going for competitive examination. Getting these points, so try करिए इसको, and tomorrow we'll discuss. फिर इसको मैं anti clock, I will make it clockwise. There are two parts of this question. You can just leave the space, and we can do second part in again next homework for next class. ठीक है, चलो. So this is your another question. Now we are on to the multiplication of two vectors. ठीक है, multiplication. So far what we have been seeing was adding and subtracting two vectors. Now we are going to see multiplication of two vectors. दो वेक्टर को किस रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, and what we get when we multiply two vectors. So what is the end result, and where do we use them? One of the example is, can you give me some example of where we use the multiplication of two vectors? Can you recall? आपने जो Work equals to F dot S. हाँ, work done is force into displacement है. यहाँ पे into रहता है, डॉट बोलते हैं उसको. दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होंगे. फर्स्ट वन विल बी डॉट, and it is also called scalar product. Why? Because we get the final quantity, scalar quantity. So first one will be this, or second type of vector product will be called vector or cross product. Do somebody know this type of products कहाँ पे आएंगे? किसी को आता है? सर्कुलर मोशन में आएंगे, रोटेशनल मोशन में, टॉर्क में आता है, रोटेशनल मोशन में. टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क इज रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर. ये टॉर्क इधर भी देखो मैंने एरो लगा दिया, तो ये फाइनल क्वांटिटी जो मिल रही है वो भी वेक्टर मिल रही है. तो क्रॉस प्रोडक्ट के अपने रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन तो है दोनों, टू टाइप्स. डॉट प्रोडक्ट विल give the end result scalar quantity, therefore it is called scalar product, and cross product will give you vector quantity, therefore it is called vector product. So they have their own set of rules. दोनों को अलग अलग सीखना पड़ेगा. First we are going to learn first one, dot or scalar product, in which we are going to get the final quantity as a scalar quantity. ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका फार्मूला सीखेंगे, फिर कहाँ कौन से चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. तो सपोज वी हैव द वेक्टर ए लाइक दिस and vector b like this, both have the angle between them theta. दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करना है. तो हाउ डू वी डिफाइन? जो फार्मूला है वही डेफिनेशन रहेगी. ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. उसका कॉस लेना है, साइन नहीं है, कॉस है ये. ठीक है,
तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। तो हाउ इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओके। यहाँ पे पहले देखो हमने क्या लिखा है, इन दिस प्रोडक्ट फाइनल फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली यहाँ पे समझ लो सी है। ओके, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा, दैट विल बी द फाइनल फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट वी गेट इज सी। ठीक है, जो सी मिलेगा हमें, दैट विल बी द फाइनल फिजिकल क्वांटिटी, दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये देखो, in place of A we can take force, in place of B we take the displacement, and उसका जो प्रोडक्ट है that will be the work done। उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी हमें स्केलर मिल गई। और इसको हम यूज कैसे करेंगे, फॉर्मूले में फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दोनों के बीच में जो एंगल दिया होगा वो लिख देंगे, उसका कोसाइन लिखेंगे। सपोज एंगल 60 डिग्री इज गिवन, cos 60 will be 1/2, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। Got it? So that's how dot product will be used। तो इसका, तो अभी तक आप लोगों ने वो पढ़ा था 9th 10th में कि मल्टीप्लिकेशन है, उसमें क्या था एक्चुअली, उसी सेम डायरेक्शन में डिस्प्ले, जिधर फोर्स था उधर ही डिस्प्लेसमेंट था, तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी आई नहीं थी कभी। और cos थीटा विल बी 1, अगर थीटा इज 0 तो cos थीटा इज 1। But now we are learning it is nothing but a dot product। It is dot product। If theta is 90 degree, if theta is 90 degree, force इधर है, force and displacement के बीच में 90 degree, तो work done will not be there, zero work done will be there। क्या होगा, zero work done। Some component of force should be there in the direction of displacement। कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट का कुछ न कुछ कंपोनेंट आना चाहिए फोर्स का, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का कुछ न कुछ कंपोनेंट फोर्स की तरफ होना चाहिए, है ना। तो कंपोनेंट देख लेते हैं, कंपोनेंट क्या है, देखो बी पर हमने बी से ए पर परपेंडिकुलर डाला, तो इसका कितना कंपोनेंट या कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, दिस मच, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा तो ये हो गया, और ए पूरा, ए हमने होल ले लिया कंप्लीट। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। बी का कंपोनेंट कितना है, बी कॉस थीटा, उसके साथ ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट वी गेट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, एंड दैट विल गिव अस द स्केलर क्वांटिटी ऑल टुगेदर। ठीक है, तो दैट दिस मच इज देयर इन द डॉट प्रोडक्ट। इसमें एनीथिंग यू वांट टू क्लेरिफाई? इट विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए। थीटा विल बी 1, थीटा विल बी 0, cos थीटा विल बी 1। तो डॉट प्रोडक्ट गिव यू द मैक्सिमम रिजल्ट व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। मिनिमम रिजल्ट, मिनिमम में ऑफ कोर्स माइनस भी आ सकता है, जब cos थीटा 180 हो जाए, आई मीन थीटा 180, तो समय माइनस आ जाएगा, 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। एनीथिंग यू वांट टू ऐड फ्रॉम योर साइड? तो इसमें कंटिन्यू सम मोर पॉइंट्स, अगर इतने में कुछ पूछना है तो क्लैरिफाई करो। अभी स्टिल इट इज नॉट येट ओवर, सो मेनी पॉइंट्स आई हैव टू टेल यू इन दिस, बट व्हाटएवर आई टोल्ड यू इट्स ओके। सर वो मिनिमम कब होगा? मिनिमम एंगल देखो, ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। cos थीटा इज द डिसाइडिंग फैक्टर, आगे लिखा होगा हमने शायद, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होती है, बोलो हाउ मच मिनिमम वैल्यू। cos थीटा फ्लक्चुएट्स लाइक दिस, ऐसा, एक मिनट, cos थीटा का ऐसा ग्राफ आता है, तो ऊपर +1 होता है, नीचे -1 होता है। तो जब -1 कब होता है, जब 180 हो जाए cos, तो cos 180 पे मिनिमम आएगा, -1 आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू। इफ यू सी द टेबल ऑफ cos थीटा, मैक्सिमम इज 1, मिनिमम इज -1। sin थीटा आल्सो, sin थीटा भी +1 -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है उसका ग्राफ। बोथ आर कन्फाइंड बिटवीन +1 and -1, sin and cosine functions। sin थीटा की भी वैल्यू -1 होती है कि नहीं होती, कब होती -1? 180 पर 180 पर 180 पर तो 0 होती है।
270 पर -1 होती, 90 पर +1, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज माइनस। तो वो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, यू कैन जस्ट रिवाइज। मैंने आपको टेबल दी थी, उसमें देख सकते हैं शायद 180 तक था, लेकिन है ना। तो आगे भी आएंगे ये पॉइंट्स। देखो ये क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट विल डू इट हियर इटसेल्फ। आंसर बताइए इसका जल्दी से। 60 degree, 60 degree. नहीं, हाँ अच्छा, ओके, थीटा ही निकलना है, करेक्ट। विल पुट द फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे 60, ओके 60 में भी राइट आंसर। ओके, आई हैव द सॉल्यूशन। चलो नहीं लिखता हूँ मैं। तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये पूरा फार्मूला ये है। अभी 9th में हमने कॉस थीटा वाला टर्म नहीं पढ़ा था, एक्चुअल में ये फुल फार्मूला। तो वर्क डन इज 50 गिवन, फोर्स अप्लाइड इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 10, cos theta निकलना है। तो cos theta is 100 up 50 upon 100, that's 1/2, so therefore theta will be 60 degree. Got it? जितना एंगल मोर होता जाएगा उतना वर्क डन कम होता जाता है। एंगल 0 पे मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। अगर यहाँ पे 100 दिया होता तो if this was 100, तो cos theta would have been 1 and theta would have been 0. Clear? So this is just basic questions, formula, dot product and formula of work done. और कहीं पे तुम्हें आता है? Have you just come across डॉट प्रोडक्ट? कहीं और रिकॉल कर सकते क्या? अभी हमने वर्क डन नहीं पढ़ाया, और कहीं पे आ गया वाला। फ्लक्स सीखते हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 12th में है, लेकिन वहां भी डॉट प्रोडक्ट आता है। दे आर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, है ना। तो वहां पर हम सीखेंगे फ्लक्स में डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो डिफरेंट चैप्टर्स विल कम अक्रॉस डॉट प्रोडक्ट्स। So now, okay, we'll see some more points of Sir? dot product. Sir, Yeah, sir, I have a doubt. Sir, I have a doubt. yes, go ahead. Sir, Please go how ahead. can two product be scalar? That's how they define. दो प्रोडक्ट का स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये जो है दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में हमने ऐसा सीखा नहीं था, बट मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को we come across this, यहाँ पे है ना, देखो this is there, work done is force dot displacement, scalar product है। that's how the physical quantities are defined in physics and maths में भी आपको आएगा ये। तो ये दो वेक्टर का डायरेक्शन, उसमें क्या हो रहा है कि एंगल इज टेकिंग केयर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस विल गो। अभी वर्क डन का हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, 9th में भी पढ़ा था हमने। तो वर्क डन जो स्केलर था, फोर्स वाज वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वाज आल्सो वेक्टर। तो इट इज नथिंग बट ए कंपोनेंट। इनका एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका एक का मैग्नीट्यूड आ रहा है और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड ही आ रहा है। दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, उसका कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का भी कंपोनेंट अलोंग दैट, उनका प्रोडक्ट है। इफ यू सी इट केयरफुली, तो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का प्रोडक्ट है, दूसरा सेकंड वेक्टर का उस फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट और कितना प्रोजेक्शन का मतलब, यहाँ से सपोज हमने लाइट डाली है ऐसे, तो इस वेक्टर का कितना पार्ट दिखेगा, इसके अलग में इतना ही दिखेगा बस, इसकी शैडो इतनी आएगी बस। सपोज यहाँ पे वॉल लगा दो, तो ये वेक्टर ऐसा है, तो यहाँ से हम लाइट प्रोजेक्ट करें तो we'll find this much is the shadow of this arrow. So dot product is nothing but a multiplication of magnitude of two vectors. दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, इसलिए वो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, इसलिए उसका
स्केलर क्वांटिटी आ रही, गॉट इट? उनके स्केलर का, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। एक का पूरा वेक्टर लेना है, दूसरे का कंपोनेंट लेना है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है। इसको भी कर सकते हो, देखो अगर आपको ऐसा लेना है, बी फुल लेना है, तो ए का कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पर, इसको वो देखना पड़ेगा इसकी तरफ कितना है। बी को ऐसे रख लो, उसको थोड़ा सा तुम्हें अलाइनमेंट इसका देखना पड़ेगा, इसको प्रॉपर वे में। इधर से कंपोनेंट कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर वेक्टर पे। ये दिस मच कंपोनेंट विल बी, तो बी पूरा लेना है, ए का कंपोनेंट लेने के लिए उसके ऊपर 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दैट्स हाउ कंपोनेंट इज टेकन, गॉट इट? तो नाउ इसी को और कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, दोनों निकालें। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वही पॉइंट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी एट व्हाट एंगल्स दे आर ऑब्टेन्ड, ठीक है? तो व्हाट एंगल्स दे आर ऑब्टेन्ड। So I think ये क्वेश्चन आगे भी है, no problem if we do it twice differently, it is given in the check point, ठीक है? यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में फॉर मैक्सिमम वैल्यू 0 degree cos theta should be 1, that is theta should be 0 degree। तो कितनी आएगी मैक्सिमम वैल्यू? a डॉट b will be ab। एंड सेकंड केस में फॉर मिनिमम वैल्यू cos theta की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। साइन की भी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? दोनों, both have got are you there? एक मिनट, जस्ट इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, नहीं, नो प्रॉब्लम। इसमें कॉल है, ओके, अननोन कॉल, ठीक है, ऑलराइट। तो मैं कब होगा ये एंगल, कितना आएगा? थीटा विल बी 180 डिग्री है ना, तो कितना आ जाएगा? ए डॉट बी विल बी ए बी ओनली एंड माइनस आगे cos थीटा की वैल्यू माइनस आगे आ जाएगी, -1। तो इन दो वैल्यू के बीच में फ्लक्चुएट करेगी इसकी डॉट प्रोडक्ट की। तो 0 कब आएगी? 90 डिग्री पर। 90 पर 0 भी आ सकती है ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो दोनों का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। Got it? Yes, sir. At Yes, sir. at theta is equal to 90 degree, A dot B will be 0. Dot product is 0. Since cos 90 is equal to 0. ये नोट में लिख दो एक्स्ट्रा पॉइंट। ये तीन एक्सट्रीम केसेस हो गए, इनके बीच में कोई और आंसर भी हो सकते हैं एंगल पर। दिस इज अप टू यू, ऐसा लिखना है तो लिखिए, नहीं तो यू कैन जस्ट लीव इट। Similar points will be keep coming in the next subsequent questions. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है आपको? It is depending upon the cos theta. As cos theta goes up, dot product का magnitude, dot product will be coming down. Similar to the vector addition also. Vector addition में भी when theta goes up, उसमें भी cos था, इसमें भी cos है। So cos is the deciding factor in both cases so far. Alright. तो ये देखो, ये इसी पॉइंट पे बेस होगा जो अभी मैंने डिस्कस किया ना, उसी पॉइंट पे बेस है ये क्वेश्चन। यू कैन टेक it down and do it in homework.
ओके, ठीक है, थिंग्स आर अंडर Sir, कंट्रोल, this is- समझ में आ sir, रहा I'm है, ऑल द writing. पॉइंट्स I'm आर writing. क्लियर? या एनीथिंग? I have to not scroll down. To not scroll down. You have, sorry, सर मैं लिख रहा होता scroll मत कीजिए, नीचे scroll मत कीजिए. नहीं मैं भी लिख रहा था उसके साइड में, होमवर्क लिख रहा था, लिख रहा है? Done sir. Okay, so now some more points we just will discuss of this. देखो, some points related to the dot product, are they commutative? Yes, answer is yes, we can commute, we can interchange A and B, doesn't make any difference. You find A dot B, it will be same as B dot A. Commutative, yes. Distributive, yes. Can we distribute? यहाँ पे dot product है, so can we distribute with B and C? Yes, you can just multiply. You can distribute A with B and C, yes. And if theta is 90, तो A dot B अभी हमने ऊपर लिखा था, फिर से रिपीट हो गया ये. A dot B will be how much? 0. Yes or no? 90 पे 0 आएगा, अभी लिखा ना ऊपर. Cos 90 is 0. And if theta is 0, then A dot B will be how much? ये भी ऊपर लिख दिया था हमने, रिपीट हो रहा है ये पॉइंट. कितना आएगा? Cos 0 is 1, तो A भी आ जाएगा. ठीक है? This point is not of that much. इसको अभी जरूरत नहीं है, इसको just we can leave it. Already we are done this point, we can just leave it. Now, can you tell me the question based so far whatever learned? उसका application है देखो. Can you tell me the value of I dot I? Dot है बीच में, can you see dot? थोड़ा बड़ा कर दूं. What will be the value of I dot I? J dot J and K dot K, and next one is I dot J. यहाँ पे same है देखो. In all three, same उससे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अदर यूनिट वेक्टर. ओके, सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, चलो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है. यहाँ पे लेट मी राइट I dot I कैप डॉट I कैप. बोलिए. 0. How 0? 1. How 1? That goes to 0. Both magnitude is 1. ओके, फर्स्ट वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1. यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? कॉस. ओके, इसको ऐसे सोच सकते हैं ना, दिस आई कैप इज वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट आई कैप इज वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड, एंड दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा. तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? I and I will be in same direction. Both will have 0 degree angle between them. It is 1. I dot I will be 1. I cap dot I cap will be 1. Or J dot J cap, J dot J cap dot J, this will also be 1. K dot K will also be 1. So first part is done. बोलो, अगर वो similar symbols है, what we get is 1 because angle is 0 and cos 0 is 1. No problem. I कैप को I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो it will be 1 because both are unit vector. जैसे ये देखो, चलो यहाँ पे देखो, A कैप सॉरी A डॉट A क्या आएगा? बोलो. Magnitude of first vector is A, magnitude of second vector is also A, और एंगल क्या होता है?
दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, जब दोनों का सिंबल सेम है, दे आर सपोज टू बी इन सेम डायरेक्शन, otherwise we cannot take the same symbol for different vectors. Cos 0 to a square. Now what is happening? A is 1, unit vector में a is 1 और other is also unit vector. तो ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर. That's what is here. I cap is unit vector है तो वो वेक्टर बट यूनिट वेक्टर है और हमें मैग्नीट्यूड लिखने पड़ते हैं. मैग्नीट्यूड लिख के और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है cos थीटा के साथ. And what about second? इसका क्या आंसर होगा? 0. I डॉट जे. तो वही लॉजिक से I का यूनिट वेक्टर 1, J का यूनिट वेक्टर 1. एंगल देखो, if I is this side, J will be this side. Yes or no? ये थीटा 90 डिग्री आ जाएगा उनके बीच का एंगल. Cos 90, that will be 0. Similarly, J dot K will be 0 and K dot I will be 0. All three are mutually perpendicular. उनका डॉट प्रोडक्ट जो है 0 ही आने वाला है. If they are different, if they are identical, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आने वाला है. Now this is basic points you have to remember. Any difficulty in this? Yeah, any difficulty? No, sir. No, sir. ये पॉइंट आपको याद रखनी है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का बैकबोन है. दे आर द बैकबोन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. इसमें 0 डिग्री एंगल कैसे था? बिकॉज आई कैप इज दिस साइड, नेक्स्ट आई कैप इज आल्सो दिस साइड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो नाउ बेस्ड ऑन दिस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर ही बेस है. मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, ये पॉइंट यू कैन सी ऑल टुगेदर. Now suppose if I give you vector A and B in unit vector notation, then A dot B निकालना आपको. That will be the second formula. As I told you, vector addition का भी 2 फार्मूले हैं, एक तो रूट वाला, एक I cap J cap वाला. Similarly here also, dot product also will have 2 formula. First already we have seen A dot B is AB sin AB cos theta. Second formula now we are going to see when vectors. ये कब यूज करेंगे? cos थीटा वाला देखो, जब दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हैं, 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हैं और एंगल दिया है, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला लाइक दिस. क्वेश्चन दिया था, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड थे और एंगल निकालना था और उनका फाइनल रिजल्टेंट भी दिया था. So this type of situation when theta is given, magnitudes are given, our third quantity is given, theta is asked. So we are going to use this first formula. Now when vector is given in I cap, J cap, K cap form, so then we have to use the second formula. Second formula बनाना पड़ेगा हमें. Let us see. Let us make the second formula for dot product. So my question is this. I am giving you in the form of question, which will be the other formula, other relation for dot product. ठीक है, यहाँ पर it is other relation. Just let me write it properly. Second relation for dot product will be obtained. You have to find out. देखो, if vector A is given ax I cap plus ay j cap plus az k cap and vector B is also given in that format, then find the value of A dot B. आपको A dot B की वैल्यू निकालनी है. तो बहुत सारे टर्म्स 0 हो सकते हैं उसमें. You will be left with very few terms, very few terms जो कि नीचे दिख रहे हैं, but I will not show you now. You have to get it your own. ax bx plus ay b x वाले कंपोनेंट फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, ax bx बच रहे हैं. ay प्लस है बीच में कि माइनस है? प्लस ay by plus और थर्ड में az az b dz. या फिर इसको x बोलने में डिफिकल्टी है तो हम जनरली व्हाट आई टीच इट लाइक दिस: a1 b a1 a2 a3
B1 B2 B3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो A1 B1 आ जाएगा, A2 B2 ऐसा। बट एनसीईआरटी बुक राइट लाइक दिस सबस्क्रिप्ट में x क्या इंडिकेट, ax क्या इंडिकेट करता है, कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, है ना। ay इज, तो लेट इट बी देयर इन सबस्क्रिप्ट, है ना। छोटे लिखना है नीचे उसके बेस में, जस्ट ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना ax, ऐसे नहीं, a लिखना है और नीचे छोटा सा x लिखना है, b लिखना है x, तो दे y, दे इंडिकेट कंपोनेंट अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन x and y and z। तो वही फॉर्मूला लगाओ, a डॉट बी ऐसे लिखेंगे। चलो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव तो है ये, हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं टर्म्स को। ए का पूरा फॉर्म, पूरे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डॉट लगाएंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो नाउ व्हाट यू डू, ये पहला वाला जो टर्म है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो। ना दूसरा वाला टर्म है, अच्छा पहले वाले टर्म को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स ब्रैकेट में आई कैप डॉट आई कैप, अभी हमने आई कैप डॉट आई कैप क्या पढ़ा था, 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी ए एक्स बी वाई और ब्रैकेट में आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के जे कैप इज 0, होल टर्म विल बी 0। सिमिलरली जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आएगा, आई डॉट के कैप, आई इंटू के आई कैप इंटू के कैप, डॉट आएगा बीच में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें केवल फर्स्ट टर्म ही बचेगा इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही सेकेंड टर्म के साथ, ऐसे ही थर्ड टर्म के साथ। Sir is not audible, children. No, ma'am. I think sir is joining back. He's joined again. Mohit sir, can you just make? Yes, ma'am.
योगेश चंद्र सर को co-host कर दीजिए, join with the next Okay, ma'am. and make me also, sir. Make you host. Okay. Sir, co-host. Okay, ma'am. Now, can you hear me? Can you hear me now? Yes, sir. Okay, this was just let me conclude here itself. That was the last point, in fact. देखो ये क्वेश्चन था ना आपको होमवर्क में, कैन यू सी इट? नहीं, अगेन इट इज गॉन. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, नॉट सकते, ठीक है. दिस क्वेश्चन आई वाज डिस्कसिंग. Yes, sir. Am I audible? So yes, you have to multiply each term. What I was telling you, ये इतना okay. Vector A is given, B is given. So to find A dot B है ना, A dot B में A की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, B की वैल्यू इधर, B वेक्टर यहाँ लिखा है. Now what you have to do? Multiply करना है, इसको इसके साथ करेंगे. तो AX BX को बाहर, डिजिट्स को बाहर, वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे. I dot I will be how much? 1 लिखना है, इसको I स्क्वायर नहीं लिखना. क्लियर? और इधर और Yes, जब sir. हम Yes. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, AX BY ब्रैकेट में I डॉट J, I डॉट J विल बी 0. अभी हमने ऊपर सीखा था 90 डिग्री एंगल में, और ये भी इसके साथ भी 0 हो जाएगा. तो इसको जब हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो ओनली दिस टर्म विल बी लेफ्ट. जब हम ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा. इसके साथ ये J डॉट J 1 हो जाएगा, इसके साथ भी 0 हो जाएगा. थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे like that. So most of the terms will be 0. Only 3 terms will be remaining. Got it? So ये complete कर लेंगे. That's all from my side. So do this and then we'll see further question based on this type of the dot product. This is the second type. इसका जो formula मिल जाएगा उसको हम use करेंगे आगे numericals के लिए. That is most commonly used. ये formula second वाला जो formula बनेगा. Well, that's all from my side. I'm ending now. We'll continue tomorrow from here. Cross product कल पढ़ेंगे. Don't miss the class of tomorrow. Cross product जो है, that is very frequently required in all the chapters. उसी में ज़्यादा problem आती. Directions particularly. So tomorrow we are going to discuss this. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Good Thank you. day. We'll continue tomorrow.